Hello, students of class ninth. Today I am explaining the chapter separating components of picture, and that is very important as I have taught you yesterday. Suppose take the example of petroleum that contains the CNG, LPG, butane, octane, petroleum, diesel, coal tar. So many things are there. How we can separate them? Otherwise there is no value of the crude oil which comes in the market for foreign country and India itself. First step is, and apply your mind in each and every step. You know the three states of matter are there. How we can separate them? When solid is dissolved in the liquid, when solid is dissolved in the gas, when solid is dissolved in the solid. Similarly, liquid is dissolved in the solid, liquid is dissolved in the gas, and liquid is dissolved in the. It means 9 steps are there. 9 different methods we can adopt, and so many other steps are there. What is concept of this? I am telling you. First is separating miscible liquid. It means two liquid like the acetone or alcohol dissolved in the water. How we can separate them? The thing is very clear. Suppose I have taken acetone and water both, and heat is given. Heat is given by this spirit lamp. Then what will happen? Water will be separated at 100 degrees centigrade, and at 57 degrees centigrade the acetone will come out. It means first acetone will come. और ये याद रखना कि दोनों को घोले तो हैं, लेकिन 57 पर जब ये पहुँचेगा एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट पर, तो ये यहीं टेम्परेचर रुका रहेगा, चाहे हीट हम कितनी देते रहें, है ना। बॉइलिंग पॉइंट उसी को कहेंगे जहाँ पर हीट कांस्टेंट हो गई, यानी वो जो हीट अब दे रहे हैं वो क्या कर रही है, इसको एसीटोन को लिक्विड से बदल रही है, किसमें, गैस में या वेपर में। और वो वेपर यहाँ आएगी, उसको हम ठंडा करके एक बीकर में ले लेंगे। अब ले लेने के बाद क्या करेंगे, एसीटोन हमारा अलग हो गया। एसीटोन अलग हो गया तो हम क्या करेंगे कि अब बचा वाटर, वाटर अपने आप ही अलग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। नाउ कम टू द अनदर थिंग, two liquid are dissolved. Only one example I am taking. So many liquid are dissolved together. How we can separate them? Like the petroleum contains the diesel, acetone, benzene. So many other compounds are there. This is the process similar to the distillation but quite different, but the concept is same. Suppose 5 or 10 compounds are there dissolved in the liquid, and I am giving heat. Then what will happen? At the different temperature, different thing will form vapor, boil and form vapor, and when vapor is condensed, that substance will be separated. It means when two are there, one is volatile, other is not, then distillation is the best process. But when I am applying for the multi कंपाउंड डिजॉल्व इन द वाटर, कई हैं डिजॉल्व हैं,
पेट्रोलियम में, लिक्विड स्टेट में, तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। फ्रैक्शन मीन्स क्या हुआ, अपना अपना हिस्सा, यानी जैसे सबसे कम टेम्परेचर पर यहाँ रहा तो इतने पर अलग हो गया, मान लीजिए ब्यूटेन, और फिर उसके आगे आया ऑक्टेन, फिर उसके आगे आया डीजल, फिर उसके आगे आया। इस तरीके से हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर एक बीकर से हटाएंगे, फिर दूसरा बीकर लाएंगे, फिर तीसरा लाएंगे। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें सेपरेट होती चली जाएंगी अपनी बॉइलिंग पॉइंट पर। दिस इज बेस्ट मेथड फॉर द पेट्रोलियम। नाउ कम टू द separating solid. There are two steps. One is crystallization. Crystallization, I am telling to you this. Suppose this is copper sulfate and this is impure. Purity always required in the chemistry, है कि नहीं? अगर मान लीजिए 100% में 30% कचरा है तो फिर उसको लेकर क्या करेंगे? तो इसकी हम थोड़ी क्वांटिटी लेंगे। ये चाइना डिश है, लेकर के हम क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करके इसको हीट करेंगे। तब तक हीट करेंगे जब तक 1/3 ना रह जाए इसकी क्वांटिटी, और फिर एक रॉड से ये ऐसे थोड़ा सा कंपाउंड लेकर फूकेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्रिस्टल बन रहे कि नहीं, दाने दानेदार। और जब बनने लग जाएं तब क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे और पानी पानी अलग हो जाएगा और क्रिस्टल ब्लॉटिंग पेपर पर जमा हो जाएगा। उसी को हम सुखा लेंगे। लेकिन और तेज करने के लिए क्रिस्टलाइजर मिलाया जाता है। जैसे H2SO4 है तो उसमें SO4 है, कॉपर सल्फेट में भी SO4 है। तो अगर हम H2SO4 मिलाते हैं तो बहुत तेज क्रिस्टल बनेगा। यानी ये मेथड उसके लिए लग सकता है जो चीज़ पानी में डिसोल्यूबल है, ऐसा सॉलिड, उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं। जैसे साल्ट फ्रॉम वाटर, बेस्ट एग्जाम्पल, कि नमक घुला है तो उसको एवापोरेट कीजिए, वो अपने आप ही कंपोनेंट में अलग हो जाएगा। फिर दूसरा जिसमें कि सॉलिड घुला हुआ है वाटर में, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या करते हैं कि जैसे कपूर लिया, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सब क्या करते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डायरेक्ट ये सॉलिड से बदल जाएगा गैस में। तो हम इसको कैसे अलग करें, यानी सॉलिड से गैस में बदल गया, फिर गैस से इसको यदि सॉलिड में तो बदल जाएगा तुरंत। तो दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द लिक्विड इज डिफाइंड एज द सब्लिमेशन, एंड दिस रिएक्शन इज सब्लिमेशन एंड दे आर कॉल्ड एज सब्लाइम्स। अब प्योर कपूर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, वही मेथड अपनाऊँगा। देखिए, चाइना डिश लिया और चाइना डिश में थोड़ी क्वांटिटी ये लिया स्प्रिट लैम्प, और चाइना डिश अभी मैं लिए था, उसमें इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेंगे। ये चाइना डिश में थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ले लिया, और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसी में इसको डाल दिए। डालने के बाद इसके ऊपर फनेल रख देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट बदल जा रहा है किसमें, इसके ऊपर फनेल रख दिए और तब गर्म किए। तो होगा क्या, आयोडीन वेपर बन के ऊपर जाएगा और इस फनेल में जमा होता चला जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनेगा और ठंडा होकर के क्या होगा, ऊपर फिर सॉलिड में बदल गया। उसको खुरच करके हम निकाल लें स्क्रैप करके, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्लिमेशन। फिर सेकेंड और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी। जो हम ड्रग्स लेते हैं या दवाइयाँ लेते हैं वो सीधे ब्लड में जाती है। अब उसको कैसे चेक किया जाए,
बहुत गजब की चीज़ है बेटा। तो उसको चेक करने के लिए हम, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, या ऐसे ही होती है भाई, हमारे पास यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक ट्यूब होती है, उसके अंदर मैंने एथेनॉल भरा, ईथर भरा, एसीटोन भरा। ये एब्जॉर्बेंट का काम करता है, यानी सोखने का काम करता है, और उसी में एक फिल्टर पेपर डाल दिए। अब क्या होगा, अपने जैसे मान लीजिए किसी ने कोई जहर खाया है, सल्फास, और ब्लड में उसके मिक्स है, तो वो क्या होगा, एक स्पॉट बन जाएगा, और स्पॉट का रंग देखेंगे फिल्टर पेपर पर, उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर। उस पर रंग देखेंगे कि ब्लू रंग का है तो गैमेक्सीन है, और रेड रंग का है तो फिनॉल है। इस तरीके से पता लगा लेंगे कि उसने क्या खाया है। आप सोचो, पोस्टमार्टम के में साइंटिस्ट ऐसे ही पता लगाता है, डॉक्टर, कि इसने क्या लिया है। और इसकी एक ही लेबोरेटरी है आगरा में, जिसको कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। नाउ 3 स्टेप आई हैव टॉट यू। नाउ अदर वन, सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड। जैसे कई वाटर हैं, कई हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते, उनको हम कैसे सेपरेट करें। जैसे बहुत ताजुब की बात बताऊँ मैं, ये जैसे केरोसिन है, या टैंकर कोई लेकर जा रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पेट्रोलियम को, और वो अचानक लीकेज हो जाए, पूरे समुद्र में फैल जाए, तो हम कैसे अलग करेंगे। क्योंकि पानी होगा समुद्र में, और उसके ऊपर इमिसिबल क्योंकि घुलेगा नहीं पानी में, और वो तैरता रहेगा ऊपर। तो अगर किसी सिस्टम में वैक्यूम बना देते हैं तो वो क्या होगा, ऊपर से एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, पानी पानी नीचे रहेगा। एक जनरल मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आदमी ने ब्रेन लगाया हर चीज़ में। तो और दूसरा तरीका और भी है कि जब मैं कह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं वो आपस में घुल नहीं रही हैं, तो उनकी अलग अलग लेयर बनेगी। और यहाँ हम क्या करें, अगर इसको कॉलम में ले लें, कौन सा फ्रैक्शनल कॉलम, या हम ले लें अलग अलग डेंसिटी जैसे होती है, तेल और पानी मिला है तो वो दोनों मिक्स नहीं होंगे। और यहाँ पर मान लो स्टॉपर लगा हो तो पहले पानी निकल जाएगा, फिर दूसरे तेल की अलग लेयर होगी, उसको अलग करते चले जाएंगे। इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल मेथड, जब कई चीज़ें अनडिजॉल्व हैं उनको मुझे अलग करना है। फिर सेपरेटिंग गैसेस फ्रॉम एयर, दैट इज कॉल्ड एज। अब गैस को अगर हम मान लीजिए एयर को उसमें से ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब अलग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये सब चीज़ें तो वो उड़ जाती हैं। यानी इनको जैसे फ्रिज में भाप बन जाती है, और खूब फ्रीजर प्रेशर अप्लाई करने पर और टेम्परेचर ठंडा करने पर वो भाप भी ठंडी होकर के सॉलिड में, बर्फ में बन जाती है, वही मेथड अपनाएंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस को लिक्विड में बदलेंगे, और लिक्विड में बदल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगा देंगे। यानी वो जब सब गैस लिक्विड हो जाए तो उसको इसमें लगा देंगे, और अपने आप क्या होगा ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि उस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर वो चीज़ एवापोरेट करके निकल जाए। फिर उसके बाद में सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, वेरी गुड मेथड। जस्ट टेक द शुगर,